Uh, uh, Good morning, everyone. My name is Saransh Maharshi, and I am a lecturer in Suresh GYAN University. And today we will discuss about the spring, which is a part of strength of material subject. Here, I am discuss about some content like course objective of the spring, course outcome of the spring, definitions of the spring, function of the spring, working of spring, diagrams, and types of spring. First of all, we will discuss about course objective of spring. Uh, the first point is engineering knowledge. Apply the knowledge of the mathematics, science, engineering fundamentals, and an engineering specializations to the solution of the complex engineering problems. And the second is problem analysis. Pro- Here to discuss about the identify, formulate, review research, literature, and analyze complex engineering problems, reaching substantiated conclusions using first principle of mathematics, natural science, and engineering sciences. कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम बात करें कि जो कोर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रिंग जो है कि इसका यूज़ हम किसी भी ये एक हमारे इंजीनियरिंग का पार्ट है कि जिसके अंदर इंजीनियरिंग की नॉलेज लेने के लिए ये एक हमारा बहुत एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इसके अंदर मतलब कि जो इंजीनियरिंग का जो पार्ट जो हम यूज़ में लेते हैं किसी भी स्प्रिंग को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी स्प्रिंग को जानने के लिए कि इसको तो उसके अंदर हमारे मैथमेटिक्स यूज़ में आती है, हमारी साइंस यूज़ में आती है, हमारे कुछ इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स यूज़ में आता है और मतलब कोई भी जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो होती है उसका एक स्पेशलाइजेशन सॉल्यूशन क्या होता है उस चीज़ की स्टडी जो है हम इंजीनियरिंग नॉलेज में स्प्रिंग को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं. एंड द सेकंड पॉइंट इज प्रॉब्लम एनालिसिस. हियर वी डिस्कस अबाउट आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट, रिव्यू रिसर्च लिटरेचर and analyze complex engineering problems, reaching substantiated conclusion using first principle of mathematics, natural sciences and engineering sciences. कि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर मतलब कि जो भी हमारे आने वाली प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. मतलब कि स्प्रिंग से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो चाहे लोड्स को लेकर हो, चाहे डिफॉर्मेशंस को लेकर हो, या चाहे बीम को लेकर हो, कि उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं. उनका एक रिसर्च लिटरेचर हम लोग तैयार करते हैं. एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को हम एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसकी क्या एक रेमेडी हो सकती है, उस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकती है, नेचुरल साइंस से रिलेटेड हो सकती है एंड इंजीनियरिंग साइंस से भी रिलेटेड हो सकती है. The next point is design object development of the solution. Here we discuss about design solution for complex engineering problems and design systems, components or process that meet the specified needs with the appropriate consideration for the public health and safety and the cultural, societal and the environmental considerations. And the next point is conduct investigations of the complex problem. Here we discuss about use research-based knowledge and research methods, including design of experiments, analysis, and interpretations of the data and synthesis of the information to provide valid conclusion. And the third point is modern tool usage. Here we discuss about create, select, and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including predictions and modeling of the complex engineering activities with an understanding of the limitations. अगर इस स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करें जो कि है हमारा design object development of the solution. Here we discuss about design solution for a complex engineering problems and design system components or process that meet the specified needs with the appropriate considerations for the public health and safety and the cultural, societal and environmental consideration. कि इसके अंदर की अगर जब हमारे टॉपिक के ऊपर जाए तो टॉपिक हमारा कह रहा है कि डिजाइन ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट फॉर द सॉल्यूशन. मतलब कि किसी भी अगर पार्ट के अगर हम डिजाइनिंग के बारे में बात करें कि लाइक एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैं ऑटोमोबाइल पार्ट के बारे में बात करता हूँ तो ऑटोमोबाइल पार्ट के अंदर मेरा स्प्रिंग जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मतलब कि इसके अंदर अगर मैं इसकी प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ तो इसका एक फैक्टर जो है वो मेरे डिजाइनिंग का भी होगा. और डिजाइनिंग इस तरीके से होगा कि अगर मैं उसके ऊपर मतलब किसी भी इंजीनियरिंग के एक पर्टिकुलर पार्ट में पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए जो मैं यहाँ पर स्प्रिंग डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि ये स्प्रिंग मेरे कौन से कंपोनेंट की एंड कितना अमाउंट ऑफ लोड जो है ये मेरा कैरी कर सकती है. मतलब कि कितनी वैल्यू तक ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगी
उसको कंटेन करके रखेगी, उसको सेव करके रखेगी, ठीक है। और साथ के साथ इसके कि अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट मैं क्यों ले रहा हूँ किसी भी डिजाइनिंग में स्प्रिंग के लिए, उस चीज की स्टडी यहाँ पर की जाती है। And the next point is conduct investigations of the complex problem. Here we discuss about use research based knowledge and research methods, including design of experiments, analysis and interpretations of data, and synthesis of the information to provide valid conclusion. यहाँ पर हमको बोला कि कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पर मतलब कि अगर हम उस स्टेज तक जब हम पहुंच जाते हैं कि हमने कि जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए हमने एक स्प्रिंग डिजाइन कर लिया, उसके बाद में जब हम उसको जब हम अप्लाई करते हैं, तो हम उसका एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि अगर मतलब कि कोई भी अगर मेरी स्प्रिंग किसी भी एक जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ड्यूरेशन में अगर ब्रेक हो जाती है, तो वो मेरी ब्रेक क्यों हुई है, क्या क्या उसका एक रीजन हो सकता है, उस चीज की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और उसके कंक्लूजन निकाला जा सकता है, और क्या उसकी एक रेमेडी हो सकती है, यहाँ उसके बारे में यहाँ पर बात किया जाता है। साथ ही साथ इसके डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, कि जहाँ पर हम स्प्रिंग इंडेक्स के बारे जहाँ पर हम स्प्रिंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, और इसकी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हैं, और एक डेटा हम तैयार करते हैं, या जिसको हम एक बैलेंस शीट बोल सकते हैं, कि वो हम एक तैयार करते हैं, और मतलब कि वो जो भी हमारा जो कस्टमर जो होगा, उनको एक वैलिड कंक्लूजन, मतलब कि एक वैलिड उसका एक जो पूरा समरी जो होगा, पूरा सारांश जो होगा, वो उसको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। And the third point is modern tool usage. Here we discuss about create, select, and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including predictions and modeling to complex engineering activities with an understanding of the limitations. कि यहाँ पर कि यहाँ पर मतलब कि जब आप स्प्रिंग के बारे में बात करते हो, जब आप स्प्रिंग के डिजाइनिंग के बारे में बात करते हो, तो उसके अंदर आप विच टाइप्स ऑफ मॉडर्न टूल आप यहाँ पर इस्तेमाल मतलब कि कौन से टाइप्स के मॉडर्न टूल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, उसके क्या रिसोर्स है, क्या उसके टेक्निक है, और क्या उसका एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, उसकी स्टडी यहाँ पर की जाती है। और साथ ही साथ अगर अपन इसके आईटी टूल के बारे में बात करें, लाइक अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, वो जो पर्टिकुलर टूल के बारे में बात करें, कि लाइक अपन यहाँ पर प्रेडिक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के मॉडलिंग के बारे में बात कर सकते हैं, और इसकी एक वो क्या लिमिटेशंस हो सकती है, उसकी स्टडी यहाँ पर मॉडर्न टूल यूसेज में करते हैं, कि अगर मतलब कि ये एक मेरी स्प्रिंग है, और इसको मुझे अगर डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए पर्टिकुलर और इसको डिज़ाइन करने के लिए उसके लिमिटेशंस को भी वेरीफाई करना पड़ता है, कि अगर इतने अमाउंट ऑफ लोड से ज़्यादा इसके ऊपर लोड कैरी किया जाएगा, तो वो उस कंडीशन के अंदर वो जो मेरा ऑब्जेक्ट जो है, लाइक ऐसा स्प्रिंग, वो मेरी बैंड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, या एक समय या एक वो जो टाइम इंटरवल के बाद वो मेरी ब्रेक भी हो सकती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्प्रिंग डिज़ाइन, like understanding of the limitations of the spring. Now I am discuss about course outcome of the spring. Here we discuss about three type three to three to seven types of course outcome. First of all is the engineering and society. Here we discuss about apply reasoning informed by the context contextual knowledge to access societal, health, safety, legal, and cultural issues, and the consequent responsibilities relevant to the professional engineering practice. And the second point is environment and sustainability. Here we discuss about understand the impact of the professional engineering solution in societal and environmental contexts, and that demonstrate the knowledge of and need for a sustainable development. And the third point is ethics. Here we discuss about apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of the engineering uh, practice. Now एंड डिस्कस अबाउट फर्स्ट पॉइंट, द इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी। मतलब कि स्प्रिंग का यूज हम कहाँ करते हैं सर, इसका यूज हम किसी भी इंजीनियरिंग में करते हैं, हम सोसाइटी के अंदर करते हैं। अप्लाई रीजनिंग
informed by the contextual knowledge to access societal, मतलब सर इसको यूज हम सोसाइटिकल पर्पज से करते हैं, इसको यूज हम हेल्थ हेल्थ पर्पज से करते हैं, सेफ्टिकल पर्पज से करते हैं, कल्चरल इश्यूज के पर्पज से हम इसको यूज करते हैं, लीगल पर्पज से भी इसको यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। हियर वी डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोफेशनल इंजीनियरिंग solution in the societal and environmental context and demonstrate the knowledge of and the need of the sustainable development। मतलब कि इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इसकी इसके क्या नीड है और इसका मतलब कि एक वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका यूज ना करने पर एक आउटपुट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी स्टडी जो है हम इस पॉइंट के अंदर करते हैं, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी विच इज द पार्ट ऑफ अ कोर्स आउटकम ऑफ द स्प्रे। And the third point is ethics. Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of the engineering practice। कि एज अ इंजीनियर हमारा मतलब उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, उसकी स्टडी जो है हम एथिक्स के अंदर करते हैं। Fourth point is individual and teamwork. Here we discuss about functions effectively as an individual and as a member of a leader in diverse teams and its multidisciplinary settings. Fourth point is communications. Communicate effectively on the complex engineering activities with the engineering community and with the society at a large, such as being able to comprehend and the write effective reports and design documentations, make effective presentations and give and receive clear instructions. And the fourth point is project management and finance. Here we discuss about demonstrate knowledge and the understanding of the engineering and management principles and apply these to one's own work as a member and leader in a team to manage projects and in a multidisciplinary environments. And the fourth point is lifelong learning. Here we discuss about recognize the need for and have the preparations and ability to engage in independent and lifelong learning in the broadest context of the technological change. Now I'm discuss about the first point, individual and teamwork in this slide. Here we discuss about function effectively as an individual and as a member or leader in diverse teams and the multidisciplinary settings। मतलब कि इसके अंदर जो है कि अगर किसी भी एक प्रिंसिपल एक स्प्रिंग को लेकर जो टीम वर्क जो हम करते हैं उसका डिस्कशन इसके अंदर किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इफेक्टिवली ऑन द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज with the engineering community and with the society at a large, like uh, like able to comprehend it and the right effectiveness reports design documentations are some factors are used in this concept for a learning outcome of for the learning outcome or the course outcome of the spring. And the project manager and the management and finance is the important factor which is used in the learning outcome of the object outcome of the spring. Here we discuss about the demonstrate knowledge and understanding of the engineering and management principles for the work as an spring, like as a designing. And the lifelong learning, it is a very important factor in the learning outcome of oblique course outcome of the spring, because uh, because it's decided as a journey of a spring at a particular work and a particular area in the spring design for a particular application. So it is a very important factor in this topic. Now I am talking about the definitions of spring. Here we discuss about a spring is an elastic object that stores mechanical energy. Springs are typically made of a spring steel. There are many spring designs in everyday use. The term often refers to the coil spring. ये लाइक जब हम यहाँ पर अगर हम डेफिनेशंस की अगर हम डेफिनेशंस ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करें तो स्प्रिंग के बारे में हमको ये बोला गया है कि ये जो होती है हमारी इलास्टिक ऑब्जेक्ट होती है जो एक हमारी मैकेनिकल एनर्जी को जो हमारी उस मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है। लाइक अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वर्ड जो है इलास्टिक ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि इलास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है। जैसे कि सर एज वी नो elastic object is an object uh, when the any amount of force are applied uh, to some objects, then shape and size of these objects are changed temporarily, but we remove the amount of force from this object, then
objects are contain a original positions like shape and size of this object। मतलब कि किसी भी कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। बट जैसे ही अगर हम उसके उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें और ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हमारा अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाए तो उस कंडीशन को हम जो है हम यहाँ पर इलास्टिक बोलेंगे और उस ऑब्जेक्ट को इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि जो स्प्रिंग जो होती है कि स्प्रिंग एक आपकी एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट होती है जो कि आपकी उस मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि मतलब कि जब स्प्रिंग को जब एक इसको हमने इलास्टिक ऑब्जेक्ट इसलिए बोला कि जब किसी भी एक जो पर्टिकुलर स्प्रिंग पर जो फोर्स लगाया जाता है देन जो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज जो होती है वो चेंज हो चुकी होती है। बट जैसे ही हम उसको उस एक्सटर्नल फोर्स से फ्री करते हैं रिमूव करते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाएगी। सो इट इज कॉल्ड इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है और वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट को और चूंकि वो अपनी अगर एक समय बाद में उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको रिमूव करने के बाद में अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाती है तो उसके पीछे का हमारा लॉजिक हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि ताकि हम जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो लग रही है उसको हम स्टोर कर सकें लाइक एज अ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारी स्प्रिंग यूज में आती है उसके अंदर स्प्रिंग का यूज यही होता है कि वो हमारे उस मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है और वो स्टोर करके इसी तरीके से रखेगी क्योंकि फोर्स रिमूव करने के बाद में वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाएगी। और जब भी कोई वस्तु जब अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाती है तो वो अपने साथ में एक वो जो प्राप्त की हुई ऊर्जा लाइक एज द एनर्जी एनर्जी ऑफ दिस एनी टाइप्स लाइक मैकेनिकल केमिकल थर्मल उसको स्टोर करके रखती है। बट हियर वी डिस्कस अबाउट only mechanical energy एंड इट इज मेड ऑफ अ स्प्रिंग स्टील। ये हमारी स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है। और मतलब कि हम जो है हमारी डेली लाइफ में मैनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंग को हम डिजाइन करते हैं बट एवरीडे जो एक लाइक ऐसा डोमेस्टिकल पर्पज से बात करें तो हम यहाँ पर कॉइल स्प्रिंग का यूज करते हैं। Functions of a spring to absorb the shock or vibrations as in a car spring, railway buffers, etc. To measure the force in a spring balance, apply force in brakes and clutches to stop the vehicles. Spring is also used to store the energy as in clock, toys, etc. मतलब कि अगर अपन बात करें कि अभी अपन ने बात करी थी कि स्प्रिंग होती क्या है तो स्प्रिंग के बारे में हमने ये वाली बात करी थी कि सर कि स्प्रिंग एक हमारी वो डिवाइस है जो मतलब कि स्प्रिंग जो है वो एक हमारी इलास्टिक मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसके जब हम फंक्शन के बारे में जब हम बात करें तो ये क्या करते हैं मतलब कि किसी भी एक जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले शॉक्स एंड वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब करती है। लाइक अगर अपन बात करें कि जब भी वो जो व्हीकल लाइक ऐसा कार को अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ तो उसके अंदर मतलब कि जब भी मतलब उसके मूविंग प्रोसेस के दौरान जो शॉक्स जो उसके अंदर आते हैं या उसके अंदर जो वाइब्रेशंस जो क्रिएट होते हैं उनको एब्सॉर्ब करने के लिए उनको एब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पर हम यहाँ पर स्प्रिंग को यूज करते हैं कि जिसकी वजह से वो शॉक्स एंड वाइब्रेशन का रियलाइज हम तक नहीं होता। मतलब कि वो उस शॉक्स एंड वाइब्रेशन की जो एनर्जी जो है वो एक वेव जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाती बिकॉज स्प्रिंग जो है उस शॉक एंड वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब करके रख लेता है। साथ ही साथ इसका यूज जो है हम रेलवे बफर्स के अंदर भी करते हैं। और ये हमारे जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो सम अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है लाइक अपन चाहे 35 किलो न्यूटन के बारे में बात करें चाहे 50 किलो न्यूटन के बारे में बात करें चाहे 40 किलो न्यूटन के बारे में बात करें उस स्प्रिंग बैलेंस के फोर्स को ये मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर कैरी हो रहा है। अप्लाई फोर्सेस इन ब्रेक्स एंड क्लचेस टू स्टॉप द व्हीकल। और जो भी गाड़ियों के अंदर जो हमारे ब्रेक्स होते हैं या जो हमारे क्लच जो होते हैं उनके अंदर भी हमने ये चीज़ देखा कि हमने उसका एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो नीचे दब जाता है बट जैसे हम उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाता है। तो उसका रीजन यही है कि सर उसके अंदर हम एक स्प्रिंग यूज में ले रहे हैं। एंड स्प्रिंग इज ऑल्सो यूज टू स्टोर द एनर्जी एज एन क्लॉक्स टॉयज एक्सेट्रा। इसको यूज जो है हम घड़ी के अंदर भी करते हैं टॉयज के अंदर भी करते हैं। लाइक सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो एक जो हमारा वो जो चाबी वाला खिलौना होता है तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने जब उसके अंदर जब हम लोग चाबी भरते हैं तो वो टॉयज जो है हमारा मूविंग कंडीशन उसकी मूविंग कंडीशन स्टार्ट हो जाती है मतलब वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है।
और वो चाबी जो है वो हमारी धीरे-धीरे रोटेट करती रहती है। बट एक समय बाद में जब वो चाबी रोटेट होना बंद हो जाती है, तब वो जो है टॉयज़ हमारा अपनी रेस्ट कंडीशन के अंदर वापस आ चुका होता है, बिकॉज़ कि उस स्प्रिंग के अंदर लगने वाला अमाउंट ऑफ फोर्स अब पूरा हो चुका होता है। So that is the best example of the spring, like as a clocks and toys. वर्किंग ऑफ स्प्रिंग्स के अब इसके स्प्रिंग के वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम बात करें टू एक्सर्ट फोर्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड टू स्टोर और एब्जॉर्ब एनर्जी। कि सर ये हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है, एक्सर्ट फोर्स हमको प्रोवाइड करवाता है, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी भी मतलब कि वो जो जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर लचीलापन बोलते हैं, वो भी हमको प्रोवाइड करवाता है स्प्रिंग। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ द स्प्रिंग, that is called spring. Here we discuss about the uh, first point and last point, and that is called and that is called coils of the spring. Types of spring. Here we discuss about various types of springs. Like first of all, compression spring. Second is extension spring. The third is torsion spring. Fourth is constant force spring. Fifth is believable spring. The sixth is volute spring, flat spring, and the last is air springs. Now we will discuss about compression spring. Compression spring. It is the helical coiled wires designed to provide an opposing force when compressed. Under increasing load, the space between coils closes until the spring's compressed length is reached. When the coils touch, key specifications include the spring rate, helix type, spring end type, wire diameter, material, the various diameter, and the fill. Compression springs are used primarily in manufacturing applications, where a variable and opposing force is required between components. कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो ये एक हमारी एक हेलिकल कॉइल्ड वायर होता है कि जिसका यूज़ हम ऑपोजिंग जिसका यूज़ हम करते हैं कि जब भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जब हम कंप्रेस करें तो उसके अंदर एक ऑपोजिंग फोर्स प्रोवाइड हो, उसके लिए यूज़ में आने वाली स्प्रिंग हमारी कंप्रेशन स्प्रिंग होती है। मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो और उसके साथ में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे ऑपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करवा, तो उसके लिए मैं कंप्रेशन स्प्रिंग यूज़ में लूँगा। इसके अंदर जो है हमारा लोड जो है वो हमारा इंक्रीज होता जाता है और कॉइल्स की बीच की जो स्पेस जो होती है वो कम होती जाती है। लाइक अगर मैं बात करूँ एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, पाँच, छः, सात, आठ, नौ कॉइल्स के बारे में बात करें तो दो एडजस्टेंट कॉइल्स आपस के अंदर जो होगी, लाइक कॉइल वन एंड कॉइल टू, वो हमारी क्या होगी कि वो एक दूसरे के साथ में क्लोज हो जाएगी इन द कंप्रेशन स्प्रिंग। और जो कंप्रेस लेंथ जो होती है वो हमारी शॉर्ट हो जाती है व्हेन द coils are touched with each other. Key specifications include the spring rate, helix types, spring end type, uh, wire diameter. Here we consider some factors like wire diameters, material, helix types, spring end, and the various diameters and the fill. Compression springs are used primarily in manufacturing applications where a variable and opposing force is required between components. मतलब इस कंप्रेशन स्प्रिंग्स का यूज़ जो है हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस के लिए करते हैं कि जहाँ पर हमको कंपोनेंट्स के ऑपोजिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, where we use the compression spring. The ends can be open, left as a cut, or closed, where the last coil flattened against the adjacent coil to produce a more square and relate to the axis. Squaring the ends may also be achieved by the grinding the surface of the last coil. Compression springs, while normally fashioned from wire, can also be machined for particularly demanding applications. Compression springs are often uh, uh, bound to order but are available in stock sizes and also as assortment kits. That is the diagram of the compression spring. Next is extension spring. It is the helical coiled wires designed to provide an opposing force when stretched. It is the helical coiled wires designed to provide an opposing force when stretched. Key specifications include the spring rate,
helix types, spring and type, wire diameter, material, and free and maximum extended lengths. Extension spring are used primary in manufacturing applications where a variable opposing force is required between two components. There are many size, spring rates, and material available depending on the holding force required. मतलब जब हमने यहाँ पर कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में जब हमने बात करी तो कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर हमने बात करा था कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब कंप्रेस किया जा रहा है तो उसके अंदर लगने वाले अमाउंट ऑफ ऑपोजिंग फोर्स को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो वहां पर हमने कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में बात करी थी। बट अब यहाँ पर जो कंडीशन जो है वो हमारी अब ऑपोजिट हो चुकी है। वहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे थे बट यहाँ पर जो है हम उसको स्ट्रेच करेंगे। मतलब वहां पर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे थे बट यहाँ पर पुल किया जाएगा और उस पुल करने के दौरान मुझे जो ऑपोजिट फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए जो मैं पर्टिकुलर स्प्रिंग जो मैं यूज कर लूंगा उसको मैं यहाँ पर एक्सटेंशन स्प्रिंग बोलूंगा। हियर की और यहाँ पर जो उस स्प्रिंग के जो स्पेसिफिकेशंस के लिए जो सम पर्टिकुलर फैक्टर्स जो मैं यूज में लूंगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा उसके स्प्रिंग रेट के बारे में, हेलिक्स टाइप्स के बारे में, स्प्रिंग एंड टाइप के बारे में, वायर डायमीटर के बारे में, मटेरियल एंड द फ्री एंड मैक्सिमम एक्सटेंडेड लेंथ। Extension springs are used primarily in manufacturing applications where a variable opposing force is required between two components. There are many sizes, spring rates, and the material available depending on the holding force required. मतलब कि इसका इस एक्सटेंशन स्प्रिंग का यूज भी हम मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस के लिए करते हैं कि जहाँ पर मुझे जहाँ पर कोई भी एक जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना हो और उसके साथ में मुझे उसके ऑपोजिंग फोर्स की भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर एक्सटेंशन स्प्रिंग आर ह्यूज। और ये जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के अंदर आती है विच इज डिपेंड ऑन द फोर्स रिक्वायर्ड कि आपको कितने अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर जो है कि एक्सटेंशन स्प्रिंग की शेप एंड साइज डिसाइड की जाती है कि लाइक आपको 30 किलो न्यूटन का फोर्स चाहिए, 25 का चाहिए, 50 का चाहिए या 70 किलो न्यूटन का अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। उस हिसाब से एक्सटेंशन स्प्रिंग को डिजाइन किया जाता है। The ends are usually formed in the shape of a hook or a loop and can also be custom made. Different types of spring ends are used in the extension spring, and many of these are standardized for a specific applications. Usually formed in the shape of a hook or loop and can also be custom made. You can learn more about this spring and option in our related guide on the extension spring and type. Extension springs are normally fashioned from wire and are not self-limiting. They can be stretched beyond their limits and are thus are limited to applications where failure is not a critical issue. Extension springs are often wound to order but are available in stock sizes and also as assortment kits. It's a diagram of a extension spring. Next is torsional spring. It is a helical or flat spiral coils or strip used to apply or resist torque loads. Key specifications including the spring rate, spring end type, wire diameter, material, and the torque rating at a no op, no position, non-position. Torsion springs are used primarily in manufacturing applications as component for various motion controls. They come in two basic types: helical torsion spring, similarly in the form of a compression or extension spring, and act in a radial direction in applying torque rather than the axial to produce tension or compression. And spiral torsion spring wound as a concentric spiral, usually from flat or rectangular oblique stock. जब हम लोग यहाँ पर टॉर्जनल स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे तो अब तक अपन ने दो स्प्रिंग्स के बारे में बात की कि जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंप्रेशन स्प्रिंग एंड सेकंड अपना एक्सटेंशन स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग के अंदर भी हमको ऑपोजिंग फोर्स की जरूरत थी और एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर भी हमको ऑपोजिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट थी। बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था कि सर कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर मतलब कि वो जो उस लोड को कंप्रेस्ड किया जा रहा था जबकि एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर हमारे लोड को स्ट्रेच किया जा रहा था। अब यहाँ पर थर्ड कंडीशन है कि सर यहाँ पर भी जो है आप ऑपोजिंग फोर्स अप्लाई करोगे बस उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी टॉर्क की है।
मतलब कि सर कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड को कंप्रेस किया जाता है, एक्सटेंशन के अंदर स्ट्रेच किया जाता है और इसके अंदर उसको टॉर्क किया जाता है, मीन्स ट्विस्ट किया जाता है। एंड दिस वेयर we you we required to twist the spring for the some particular applications or the objects of this spring. We use the torsional spring. We consider the some amount of factors like spring rate, spring and type, wire diameter, material and the torque rating at a non position, कि उस नॉन पोजिशन के लिए मतलब कि जो पोजिशन जो हमको दी हुई है कि आपको उसको कितना अमाउंट ऑफ ट्विस्ट करना है कि लाइक 45 डिग्री तक या 60 डिग्री तक या 70 डिग्री तक आपको उसको ट्विस्ट करना है, उसके बेस पर इनकी फैक्टर्स और इनकी रेटिंग सेट की जाती है। टॉर्जनल स्प्रिंग आर यूज्ड प्राइमरी इन मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस एज कंपोनेंट्स फॉर वेरियस मोशन कंट्रोल्स, मतलब इसका यूज जो है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस के अंदर मोशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर हमारे दो टाइप्स की टॉर्जनल स्प्रिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी होती है हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग, जो कि हमारी कंप्रेस्ड और एक्सटेंशन टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की तरह ही होती है, ठीक है। जिसके और ये हमारी वो जो एक्सेल डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। और दूसरी हमारी होती है स्पाइरल टॉर्जनल स्प्रिंग। ये हमारे जो क्या कहते हैं स्पायरिकल फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होती है, कि जिसके अंदर ये हमारी फ्लैट भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। इट इज कॉल्ड टॉर्जनल स्प्रिंग। Constant force spring. Clocks feature clock spring or constant force spring. Constant force spring are tightly wound bands of a steel that resemble a roll of tape. A load forces the spring to contract, and when it is removed, the spring rebounds with the constant force. Constant force spring are also found in the wind-up toys and similar devices. और मतलब किसी भी टॉयज या घड़ियों में या क्लॉक्स के अंदर यूज में आने वाली स्प्रिंग को जो है हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स स्प्रिंग बोलेंगे, क्योंकि ये एक वो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स को कैरी करेगा। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फोर्स स्प्रिंग। Belleville spring. It is a Belleville spring. It is a slightly tapered disc, and for the reason and are also known as the disc springs. They are used in the conjunctions with the fasteners like bolt for uh, presenting purpose. Typically, a bolt is inserted in a uh, Belleville spring and then attached to a substract. Belleville springs are available in a variety of material options, including 17 to 7 pH stainless steel, 301 stainless steel, beryllium copper, H13, phosphorus bronze, जिंक प्लेटेड एंड द जेवाई प्लेटेड। मतलब इस स्प्रिंग को जो है हम लोग डिस्क स्प्रिंग भी बोलते हैं, जिसका यूज़ किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चैन या बोल्ट के अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है। और इसके अंदर एक जो हमको ग्रेड दी हुई होती है कि उस ग्रेड के बेस पर हम बिलेवल स्प्रिंग को यूज़ में लेते हैं। वो हमारे 7 पीएच स्टेनलेस स्टील हो सकती है, 301 स्टेनलेस स्टील हो सकती है, बेरिलियम हो सकती है, कॉपर हो सकती है, H13 की ग्रेड हो सकती है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की ग्रेड हो सकती है, जिंक प्लेटेड की ग्रेड हो सकती है और हमारी ZY प्लेटेड की ग्रेड हो सकती है। एंड दैट इज कॉल्ड डिस्क spring because it is also called the disc spring. Next is volute spring. It is the flat metal stripes. It is the flat metal stripes wound together to form helical spirals that are typically used in the compression applications. Key specifications include the intended applications, diameter, stroke, material, and the end attachment style. Volute springs are used primarily in applications where a compression spring is required, having a long fatigue life or high spring forces repeatability. They come in a variety of sizes depending on the applications and force required and materials. Some volute springs are single-ended, while other are double. Flat spring. It is a stripes or सॉरी कि अगर हम वॉल्यूट स्प्रिंग के बारे में बात करें तो वॉल्यूट स्प्रिंग का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं कि ये हमारे लाइक ऐसा कॉम्प्रेशन स्प्रिंग की तरह होती है, बट कि जहाँ पर हम कॉम्प्रेशन स्प्रिंग के साथ साथ में उसकी लॉन्ग फटिक लाइफ की भी रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर जो पर्टिकुलर स्प्रिंग हम यूज़ में लेंगे वो हमारी होगी वॉल्यूट स्प्रिंग। Flat spring. It is the stripes or bars of a metal or assemblies of such that are formed to produce a repeatable
counterforce when compressed or displaced and used for the positioning or the uh, contacting. Key specifications include the intended applications, flat spring type, and the spring ends type. Flat spring are used primarily in applications where a repeatable counterforce is required to control motion or load by making contact and apply force. They are available in various sizes, types, material, as well as the mounting types or shapes. Some easily recognizable examples of the flat springs are flat battery contacts, vehicle lift springs, and counterbalancing in the sliding screen windows. कि जहाँ पर हमको किसी भी स्क्रीन विंडो किसी भी स्लाइडिंग स्क्रीन विंडोज में काउंटर बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम इसको यूज़ में करते हैं। लिफ्ट व्हीकल लिफ्ट स्प्रिंग के अंदर इसको यूज़ में करते हैं, फ्लैट बैटरी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, माउंटिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल साइजेस में हम इसको यूज़ में करते हैं। जहाँ पर आपको काउंटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, वो हमारे फ्लैट स्प्रिंग होते हैं। And the last but not least is air spring. It is the air pressurized below or bladder type devices of a variety of shapes and size, and used for providing actuations, shock absorptions, and vibrations isolation. Key specifications include the intended applications like type, style, physical dimensions, mounting types, as well as the features. Air spring are used primarily in the machine applications such as the vehicle suspensions for shock absorptions and a machine mounts for the vibrations isolations. They are available in a variety of types and the sizes based on the load requirements and applications. Other uses including lifting, compressions, tilting, etc. Air springs used for vibrations isolations are also known as the air cushions. कि इस एयर स्प्रिंग का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं कि जहाँ पर हमको कि किसी भी ब्लेडर के अंदर प्रेशर, मतलब कि वो जो प्रेशराइज्ड की कंडीशन चाहिए होती है, या वो एक डिवाइस की जहाँ पर हमको एक एक्चुएशंस के साथ में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाई होती है, उसको शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करवाया होता है, उसका वाइब्रेशन आइसोलेशन प्रोवाइड करवाया होता है। वहाँ पर उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर स्प्रिंग हम यूज़ में लेते हैं, वो हमारी एयर स्प्रिंग होती है। इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स हम यूज़ में लेते हैं, जो कि हमारी फिजिकल डायमेंशन हो सकती है, हमारा टाइप्स हो सकते हैं, हमारी स्टाइल हो सकती है, या फिर हमारे माउंटिंग टाइप्स हो सकती है। और इसके अंदर कुछ हम इसका यूज़ जो है हम मशीनिंग एप्लीकेशंस के अंदर भी करते हैं। व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी यूज़ में लेते हैं, शॉक वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर भी इसका हम यूज़ करता है। और जहाँ पर हमको वो जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लॉड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको लिफ्टिंग की और उसके टिल्टिंग की रिक्वायरमेंट जहाँ पर होती है, उस कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट जहाँ पर होती है, वहाँ पर जो है वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए जो पर्टिकुलर स्प्रिंग हमारी यूज़ में आती है, वो हमारी एयर स्प्रिंग होती है। थैंक यू।